Good morning students. In the last lectures we are discussing internet advertising. Okay, now we are watching some advantages of internet advertising. Okay, so what kind of advantages it is given here? There are some important advantages of internet advertising. First importance is global reach. Okay, when you are watching the internet is given the services at global level. Okay, it's almost reach all the universe. Okay, so therefore it is the shortest time span medium which is given all kind of informations to the products and services. Okay, so the consumers is easily bought or buy that products, and there are multiple kind of mediums for advertisers to providing multiple types of information about different products and services. Okay, so advertisers for buyers and sellers, what kind of advantages are given by internet that are given here? First one, range of the product and services. Okay, it is possible to advertisers are given all kind of information about different products and services. Second one, proposals, either normal or time bound. When you the sellers is selling the products and buyers is taking some products, that time in that one they are, it is important to time bonding. Okay, means goods and services are reached by time to time, so it is important to give the products as soon as possible. So the internet advertisings are time bounded. When you are click on Amazon or any other services just like Flipkart, Amazon, they are given the services in time bound. Okay, this is the benefit of internet advertising. Third one, channel through the consumers can request those products. Okay, there are multiple types of channels are available to for shopping, just like Amazon, just like Flipkart, just like Snapdeal. There are multiple types of companies which is providing the services of to providing goods and services by different types of channels by using internet advertising. Okay, and last benefit is executions of the order. Okay, when you are purchasing any kind of products on internet, they are given self services. Okay, they are accepting your requests, and when you are they are accepting your request, they are started the process to sell the products as soon as possible and given into time process. Okay, so that is the important of internet advertising, means products and services are given as soon as possible. It is included in time bounding, means whatever the periods they are given, on that periods they are providing the products. Third one, the consumers is only requested that products, and all types of executions and all types of process which is helping to provided the products in your house, that all are doing by internet advertisers. Okay, the second benefit is direct interactions. This is also one of the benefit. By using internet, consumers are reached to the advertisers, consumers are touched to the advertisers, and at that time there is no using the intermediate or middle persons. Okay, so therefore whatever you have to pay for the middle person is it not important in this process. Okay, whatever you are given to the middle person, जो भी आप अंदर के पर्सन्स को दे रहे हो, यहाँ पे आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इंटरनेट से एडवर्टाइजिंग देखकर आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो. ये दूसरा फ़ायदा इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का. ओके, यू हैव टू डायरेक्टली buying the products by no using any kind of middleman. Okay, because services internet services or internet advertising is given full of the information about that particular products. Okay, next, third benefit is cash rich buyer. When you are watching the advertising on internet and you are purchasing any kind of products by using internet, on that time all types of information about the
payment that particular product is given there, and the persons or advertiser is not restricted to any persons to give the cash फर्स्ट। ओके, यहाँ पे एडवर्टाइजर्स आपको कंपलसरी नहीं करेगा कि आप मुझे पहले ही कैश दे दो। ओके, दे आर ओनली गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू यू, सम इंफॉर्मेशन टू यू, दैट इज कॉल कैश रिच बायर। जब वो बायर्स के पास प्रोडक्ट पहुँचाएगा तब वो कैश मांगेगा। ओके, ये इसका और एक फ़ायदा है। चौथा, ओशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यू नोज दैट इन इंटरनेट इट्स जस्ट लाइक सी वाटर। ओके, in internet there are so many products and services available, and their information is also available on that internet. So internet is called flooded. Okay, it's just like flood by the river. Okay, because they are given all kind of information about the products and services. For buyers it's the ocean of the information. Okay, buyers के लिए एक समुंदर है वो, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स की, बहुत प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, जो भी आप देखना चाहते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। सो इट इज़ यूजफुल फॉर यू टू टेकिंग प्रॉपर प्रोडक्ट्स एंड इन प्रॉपर रेट्स। ओके, फिफ्थ बेनिफिट इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का है इंस्टेंट फीडबैक। ओके, when you are purchasing any kind of services from internet, the advertisers is asking so many questions. They are given to you one of the questionnaire. They are asking so many feedback to you, and that time you have to given some messages, you have to given some inquiries for your orders. Okay, so this is the help to the advertisers to इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ओके, अगर उसको फीडबैक मिल रहा है उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, तो उस फीडबैक्स का इस्तेमाल वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिक्स बेनिफिट है राउंड द क्लॉक सर्विसेज। ओके, सो इंटरनेट सर्विसेज इज अवेलेबल होल ईयर and 24 hours. Okay, so it is very convenience to you to purchase any kind of products anywhere and anytime. Okay, that is round the clock services. Next one is facilitated attentions. When you are trying to buying any kind of products by using internet, it is highly attract to you. It is given all kind of attention to you and concentrations of your orders. So whatever you have to ready to purchase, the internet is given all kind of information that particular products. So it is useful to facilitate attentions of the particular consumers. Okay, उसके कुछ लॉसेस भी है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के, वो भी देख लो। फिर से एक बार हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। एडवर्टाइजर्स क्या थे? तो पहला एडवर्टाइजर्स था कि इंटरनेट ग्लोबल रीच है, ये आपको ऑल यूनिवर्स पे सभी जगह पर अवेलेबल होगा। इससे आप प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हो। टाइम बाउंड, एक टाइम के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा। कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट जो उसको डायरेक्टली जाकर परचेस करने में प्रॉब्लम होता है, उन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे परचेस कर सकता है। और लास्ट ये है कि एजुकेशन और बाकी की सारी प्रोसीजर्स एडवर्टाइजर्स या कंपनीज़ के हाथ में होती है, तो वो तुरंत ईज़िली आपको प्रोडक्ट आपके पास पहुँच जाता है। दूसरा है डायरेक्ट इंटरेक्शंस। यहाँ पे इंटरनेट पे आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो प्रोडक्ट की, तो आपको मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो आपको दलाल बन के लूटने का काम करता है, उसकी इस मिडल मैन की आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कैश रिच बायर्स। इंटरनेट पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स तुरंत परचेस करने के बाद ही कैश देना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। तो ये एक आपको फ़ायदा है कि अगर आपके पास तुरंत पैसे अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में पैसे देकर वो प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है ओशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंटरनेट एक टाइप का समुंदर है जिसमें इंफॉर्मेशंस भर के पड़ी है हर एक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। ओके, तो इससे आपको करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है इंस्टेंट फीडबैक।
इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का और एक फ़ायदा है कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग से एडवर्टाइजर्स को फीडबैक मिल सकता है। आप उसको बहुत सारे मैसेज, इंक्वायरी या ऑर्डर देते हो तो उससे उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है राउंड द क्लॉक सर्विसेज। इंटरनेट होल ईयर्स अवेलेबल है और इंटरनेट सभी जगह पर अवेलेबल है। सो ये आपको, आप कहीं से भी चीज़ें परचेस कर सकते हो, एनीवेयर जहाँ पे आपको डिज़ायर होगी। एंड लास्ट है फैसिलिटेड अटेंशन। इंटरनेट पे जो भी आप एडवर्टाइजिंग करते हो वहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग आपका अटेंशंस कैच करती है और आपको प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट बताती है, तो आप वहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग पे प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते। ओके, नेक्स्ट है डिसएडवर्टाइजेस क्या है। डाउटफुल मीडियम। ओके, so many people which who are purchased from the internet of any products and services, they are always they are always created a doubt about that particular products. Okay, so they are specially suspect about scam, fraud, manipulations and misconduct. Okay, so they are always worried about that particular product. जब भी आप इंटरनेट पे प्रोडक्ट्स देखोगे या इंटरनेट के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमेशा एक सस्पेंशन होता है या शक किया जाता है। ओके, इसमें बहुत सारे स्कैम होने के डर होता है, फ्रॉड का डर होता है, बहुत सारे लोग फंसाने का डर होता है, मैनिपुलेशंस होता है। आप एक प्रोडक्ट मांगते हो, दूसरा ही प्रोडक्ट आपको मिलता है, उसके बाद आपको बहुत सारा इरिटेट किया जाता है। सो दैट इज़ मैनिपुलेशंस होने के चांसेस होते हैं। मिसकंडक्ट होता है, आप जो इन्फॉर्मेशन मांगते हो उससे दूसरा ही प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती। तो ये जो सारी चीज़ें, इसकी वजह से इंटरनेट की जो एडवर्टाइजिंग है ये बहुत ही डाउटफुल होती है। बहुत बार जो सर्व कर रहा है या इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देख रहा है उसको कुछ चीज़ों की हॉरिबल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पास आउट की जाती है, उसके लॉसेस प्रॉब्लम बताए नहीं जाते। तो ये एक प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है जंक मेल। इंटरनेट you have to using and you knows that in whole day you have to so many junk mail came in your account. Okay, there are so many junk mail, means wastage mail came in your account which is fully unauthorized and fully creating blackmailing. Okay, बहुत सारी आपको इंटरनेट पे जंक मेल आती है, जो जंक मेल आपके किसी भी काम में की नहीं होती, या उसमें ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप परचेज भी नहीं करना चाहते, या कई बार आप वो जंक मेल को डायरेक्टली इग्नोर भी करते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज़। ओके, द इंडिया इज एक्सेप्टेड इंटरनेट बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। ओके, बिकॉज द इंडियन पीपल और इंडियन पॉपुलेशन इज मेनली कॉन्सेंट्रेट टू बाइंग प्रोडक्ट्स बाय going to that particular place and purchasing from that one. Okay, यहाँ की जो पब्लिक्स है वो हर एक प्रोडक्ट्स को खुद जाकर इंस्पेक्ट करके लेने के बारे में सोचती है, तो वो इंटरनेट मार्केटिंग या इंटरनेट पे चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे लोग तैयार नहीं होते। नेक्स्ट फोर्थ लिमिटेशन है कि लिमिटेड अपील। जैसे आप मास मीडिया के जो बहुत सारे मीडियम देखते हो, टीवी, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल या रेडियो, यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग या अपील किया जाता है उनके ऊपर लोगों का कॉन्सेंट्रेट होता है, या वो चीज़ें वो लेने के लिए सोफिस्टिकेटेड होती है। लेकिन वही अगर आप इंटरनेट पे देख रहे हो तो लोग उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, दे आर डायरेक्टली इग्नोर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। इफ़ देयर इज एनी एड केम ऑन इंटरनेट दे आर डायरेक्टली पासिंग दैट एडवर्टाइजिंग। ओके, एंड लास्ट है फियर फैक्टर्स होते हैं। ओके, व्हेन यू आर वॉचिंग इन इंटरनेट पे प्रॉब्लम्स ये होता है कि आप जब भी इंटरनेट पे चीज़ें परचेस करने के बारे में सोचते हो या नेट ऑनलाइन मार्केटिंग करने के बारे में सोचते हो, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड नंबर देना पड़ता है या आपकी ऑर्डर डिटेल देनी पड़ती है, जो देना आपको खुद ही हार्मफुल लगता है, या आपको हमेशा एक फियर रहती है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं पास ना हो जाए। सो दैट इज़ द limitations of internet advertising. Okay, this part is over. This is the chapter number 5 in internet introductions of advertising subject. Okay, thank you students.